بارے میں جاننا چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین اکرامی، میرا نام عذرا فردوس ہے۔ عالمہ کورس سے پہلے میں نے مولویہ کورس کیا تھا، لیکن کچھ دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے 16 سال کی دینی تعلیم سے دور رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مجھے علم دین سیکھنے کا موقع دیا۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سبق عطا کرتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جامعہ مکارم الاخلاق سے جوڑا، جہاں مجھے صحیح عقیدہ علم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ اس کے علاوہ بھی میں نے جامعہ مکارم میں بطور استاذہ تفسیر اور عربی گرامر پڑھانے کا بھی موقع ملا، الحمدللہ۔ حسنہ صاحبہ، آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین، میرا نام حسنہ حسن ہے۔ الحمدللہ میں جامعہ مکارم الاخلاق سے عالمہ فاضلہ کا کورس مکمل کر چکی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میری اصلی تعلیم BCom کمپیوٹرز اور M.Com فائنینس ہے۔ الحمدللہ ابھی میں جامعہ میں معلمہ کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہی ہوں، اور میرے سبجیکٹ جو میں یہاں پڑھاتی ہوں عربی گرامر، عقیدہ، فقہ اور حدیث ہے۔ ماشاء اللہ۔ عفت عائشہ صاحبہ، ہم آپ کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عفت عائشہ ہے۔ میں گریجویٹ میں عالمیت کر رہی تھی کہ میری شادی ہو گئی اور مجھے بامبے شفٹ ہونا پڑا۔ 17 سال کا عرصہ بیت گیا۔ اس دوران مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 بچوں کی نعمت سے نوازا، اور پھر میں حیدرآباد شفٹ ہوئی تو میں نے جامعہ مکارم الاخلاق کو جوائن کیا، اور یہاں سے میں نے فضیلت کمپلیٹ کیا، اور اب الحمدللہ میں یہاں پہ درس و تدریس کی خدمت انجام دے رہی ہوں۔ میرے سبجیکٹس میں حدیث ہے، سیرت ہے، اور صرف اور نحو عربی گرامر ہے۔ ماشاء اللہ۔ سیدہ صدف، آپ اپنے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سیدہ صدف ہے۔ میں نے عثمانیہ یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی۔ اسکولنگ اور انجینئرنگ کے دوران جامعہ مکارم الاخلاق سے عالمہ فاضلہ اور تخصص فقہ کا کورس مکمل کیا۔ اب میں بطور انجینئر واٹر سپلائی ڈپارٹمنٹ میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہوں، اور ساتھ ہی جامعہ مکارم الاخلاق میں تفسیر اور دینیات کی کلاسز لیتی ہوں۔ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ۔ سامعین اکرام، چلتے ہیں اب ہمارے سوالات کے سیشن کی طرف۔ میں اپنا پہلا سوال عذرا صاحبہ سے کرنا چاہوں گی۔ محترم عذرا صاحبہ، شریعت کا ایک حکم ایسا ہے جس پر غیر مسلم اور آزادی رسوا کے علمبردار کڑا اعتراض کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مرد کے لیے بیک وقت 4 شادیوں کی اجازت کیوں ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ماشاء اللہ، آج کی سماجی ضرورت کا بہت ہی اہم سوال کیا ہے آپ نے۔ دیکھیے، بیک مرد
और निकाह मिलाकर एक पाकीज़ा माशरा कायम करें। माशाअल्लाह। मुहतरमा हज़रत साहिबा, जैसा कि आपने बताया है कि मर्द को एक से ज्यादा निकाह करने की इजाजत है, इसी तरह खवातीन को भी एक से ज्यादा निकाह करने की इजाजत क्यों नहीं है? एक आपने तो बहुत ही बेहतरीन सवाल किया है, क्योंकि हर वक्त यही जानना चाहिए कि अगर मर्द को है तो फिर औरत को क्यों नहीं। देखिए, ये तो क़तअन ममनू है, जानते हैं इसकी वजह, इंशाअल्लाह हम जानेंगे कि इसकी वजह क्या है। तो सबसे पहली वजह कि औरत को एक से ज्यादा निकाह का हुक्म बैत वक्त निकाह का हुक्म इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि जब आदमी एक से ज्यादा निकाह करता है तो इन बीवियों से पैदा होने वाले बच्चों के लिए हकीकी माँ बाप कौन है मालूम होता है, यानी कि हकीकी माँ कौन है और हकीकी बाप, एक ही वालिद और एक ही माँ होंगे। बरखिलाफ इसके अगर औरत एक से ज्यादा शौहर रखती है तो इस सूरत में इससे पैदा होने वाले बच्चे के लिए बाप का एहतमाल होगा कि इसका हकीकी बाप कौन है। तो ऐसी सूरत में साइंटिफिकली प्रूव किया गया है कि जिन बच्चों को अपने वालिद का नाम मालूम ना हो तो ऐसे बच्चों के ज़हनों पर मनफी असर मुरतब होते हैं। अब जानते हैं दूसरी वजह क्या है। दूसरी वजह यह होगा कि नाम रखने का। अब इन बच्चों से इन बीवियों से जो बच्चे पैदा होंगे तो वो हर आदमी यही चाहेगा कि इसका नाम रखा कौन उठाए। इस सूरत में हर बार यही चाहेगा कि नाम रखने की जिम्मेदारी, जो बच्चा पैदा हुआ उसके नाम रखने की जिम्मेदारी उस शौहर पर ना डाली जाए। और तीसरी सबसे बड़ी और अहम वजह यह है कि जब एक औरत मुताबिक शौहर रखती है, यानी कि एक से ज्यादा आदमियों से ताल्लुक रखने की वजह से औरत में बीमारियां लाक होने के भी इम्कानात है। माशाअल्लाह। मुहतरमा हज़रत साहिबा, मर्द और औरत की तादाद के रेशे के हिसाब से हमें कैसे एक्सप्लेन करेंगी? देखिए, सपोज समझिए कि 100 मर्द है और 120 ख्वातीन है, जहाँ ख्वातीन की तादाद 20 एक्स्ट्रा ज़ायद बताई जा रही है। अब अगर शरीयत का हुक्म होता कि एक आदमी एक ही निकाह करे तो 100 आदमियों के लिए 100 औरतें काफ़ी हो जाती थी। अब बकिया 20 जो औरतें बची तो वो लोग कहाँ जाएंगी, क्या करेंगे? तो ऐसी सूरत में मर्द हज़रात जो अल्लाह का खौफ रखते हैं वो क्या करें, इनको अपने निकाह में लाएंगे। तो इस तरह करने से सिर्फ 20 मर्द ही 20 औरतों का करेंगे, या कोई 2 करके या कोई 3 करके या कोई एक ही में सिर्फ 20 मर्द हज़रात ही अपने निकाह में लाएंगे। माशाअल्लाह। अब मैं हुस्न हसन की तरफ चलती हूँ। हुस्न हसन, इस्लाम पर यह एतराज़ किया जाता है कि तलाक का इख्तियार सिर्फ मर्द को क्यों दिया गया है और औरत को क्यों नहीं दिया गया है। आप इस बारे में हमें क्या बताना चाहेंगी? तलाक इस्लाम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जायज़ करदा अमल में से एक नापसंदीदा अमल है, क्योंकि जब तलाक वाक़ होती है तो मियाँ बीवी अलग होते हैं और 2 खानदान बिखर जाते हैं, और औलाद हो तो औलाद का भी मुस्तक़बिल बिगड़ जाता है और एक माशरे में बिगाड़ पैदा हो जाता है और एक अच्छा माशरा तबाही की तरफ जाता है। लेकिन ये भी हकीकत है कि कभी कभी ऐसे हालात पेश आ जाते हैं कि एक दूसरे से जुदा होकर ज़िंदगी गुजारने में ही आफियत महसूस होती है। ऐसी सूरत में शरीयत ने शौहर को तलाक देने का हुक्म दिया है और बीवी को शौहर से खुला लेकर अलहदा होने का हुक्म दिया है। मर्द को तलाक देने की हिम्मत ये है कि मर्द औरत के मुकाबले में कुव्वत फैसला ज़्यादा रखता है और औरत के मुकाबले में कम जज्बाती होते हैं। लेकिन इस्लाम ने जब मर्द को तलाक देने की हुक्म दिया है तो उसमें कुछ जिम्मेदारियाँ भी आयद की है, जैसे उसको बीवी का महर अदा करना होगा और इधर के दरमियान नफा और खर्चा देना होता है, और औलाद हो तो औलाद की परवरिश का खर्चा भी जिंदगी भर अदा करना होता है। ये सारी जिम्मेदारियाँ इस्लाम में बीवी पर आयद नहीं की है, फिर शौहर पर आयद की है। तो ये सोचकर मर्द तलाक देने से रुकता है। और ये बात भी सही है कि इस्लाम में मियाँ बीवी के हुकूक बताए गए हैं। अगर निकाह के बाद ज़ौजेन एक दूसरे के हुकूक सही मायने में अदा करेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो निकाह जैसे मसाइल में मुब्तला नहीं होंगे और इस्लाम और माशरे में ऐसी बुराई नहीं फैलेगी। माशाअल्लाह। अब हम चलते हैं इफ़त आयशा की तरफ। इफ़त आयशा साहिबा, आप मुझे बताइए कि मुस्लिम ख़वातीन से मुतल्लिक़ शरीयत के इस हुक्म पर भी बड़ा एतराज़ होता है कि इस्लाम में मुतल्लिक़ा औरत का नफ़क़ा सिर्फ इद्दत तक ही इसके साबिक़ा शौहर
जब निकाह होता है तो औरत की तमाम जिम्मेदारी मर्द पर आयद की जाती है कि तमाम उसके अखराजात उठाए, क्योंकि बीवी उसके घर की देखभाल करती है, उसके बच्चों की परवरिश करती है, उनकी तरबियत करती है। तो मर्द का ये फ़र्ज़ है कि अपने बीवी के ज़रूरियात अखराजात तमाम वही पूरे करे। अगर बीवी मालदार हो तब भी शौहर पर एक पाबंदी आयद होती है कि वो अपने बीवी के अखराजात पूरे करे। और क्योंकि इस सूरत में मियाँ बीवी के दरमियान निकाह का ताल्लुक़ कायम रहता है, लेकिन जब किसी वजह से खुला हो जाए या तलाक हो जाए तो मर्द अब इसका पाबंद नहीं रहता कि वो नाम नफ़ा या अखराजात उठाए, क्योंकि बीवी मियाँ बीवी के कोई ताल्लुकात अब बाकी नहीं रहते हैं। औरत आज़ाद होती है, चाहे तो वो दूसरा निकाह करे, चाहे तो वो कोई जॉब करे या बिजनेस करे। हाँ, अलबत्ता उसके बच्चों की जिम्मेदारी अभी भी उसके शौहर पर होगी, यानी उनके बाप पर होगी कि वो अपने बच्चों का नाम नफ़ा दे। अब यहाँ पर एक बात, ये असली बात समझने की है, जब ऐसी सूरत में शौहर के ऊपर ये जिम्मेदारी ऐड की जाए नाम नफ़े की, तो उसके अंदर मज़ीद नफ़रत बढ़ने का अंदेशा है। और हम आए दिन हम रिपोर्ट्स देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं कैसी सूरत में मर्द बीवी से नफ़रत पैदा हो जाती है और उसके वो नुकसान पहुंचाने का अंदेशा है। और आए दिन हम रिपोर्ट्स में देखते हैं कि कोई ना कोई वारदात हमें नज़र आती है। तो ये बहुत संगीन अमल है जिसमें कहा जाता है और ये बताया जाता है कि मर्द को पाबंद किया जाए नफ़े का। ये बिल्कुल गलत नज़रिया। माशाल्लाह। अब हम चलते हैं सैयदा सदफ की तरफ, मीरास के ताल्लुक से। सैयदा सदफ, आप मुझे बताइए कि इस्लाम में औरतों और मर्दों के हक़ मीरास में जो फ़र्ज़ है, इस पर फ़र्क है, इस पर भी बहुत एतराज़ किया जाता है कि लड़के को माल और जायदाद में लड़कियों के मुकाबले में डबल हिस्सा मिलता है। आप इस्लाम की तरफ से किस तरह दिफा करेंगी? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जिसने तर्के में औरत का हिस्सा रखा है। इस्लाम से पहले किसी मज़हब ने भी तर्के में औरत का हिस्सा नहीं रखा था। 20वीं सदी तक प्लेटफॉर्म में औरत औरतों को तर्के में हिस्सा नहीं देती थी। ये उन्होंने मॉडर्नाइजेशन के बाद अपने लॉज में चेंज किए और औरतों को तर्के में हिस्सा देने लगी। हालांकि इस्लाम ने 1500 साल कबल औरत का तर्के में हिस्सा रखा था। तर्का क्या है? जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो जो माल दौलत जायदाद वो पीछे छोड़कर जाता है उसे हम तर्का कहते हैं। तर्के में से सबसे पहले अगर मरने वाले ने जिंदगी में किसी से कर्ज लिया होगा तो वो कर्ज निकाल के अदा किया जाएगा। उसके बाद उसने अगर कोई वसीयत की होगी तो उस वसीयत को पूरा किया जाएगा। उसके बाद जो पैसा बचेगा, जो जायदाद बचेगी, उसके वारिसीन में इस्लाम के उसूल और ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए तकसीम कर दिया जाएगा। ऐसे 6 वारिसीन हैं जिनको हर हाल में तर्के में हिस्सा मिलता है। वो है मरने वाले के माँ बाप, मरने वाले के बेटा बेटी, मरने वाले के शौहर और मरने वाले की बीवी। अब वसीयत के लिए 2 शराइत हैं। पहली शर्त ये है कि वसीयत उनके लिए ही की जा सकती है जिसका अल्लाह ताला ने विरासत में हिस्सा नहीं रखा हो। विरासत यानी तर्का और मीरास भी कहते हैं इसे। जिनका विरासत में हिस्सा है उनके लिए वसीयत नहीं की जा सकती। अगर कोई करे भी तो उसे माना नहीं जाएगा। दूसरी शर्त ये है कि सिर्फ 1/3 हिस्से की हद तक ही वसीयत की जा सकती है। 1/3 को हम 33% कहेंगे या 100 में से 33 रुपये की ही वसीयत की जाएगी और अगर उससे ज़्यादा भी की जाए तो वो मान नहीं जाएगी। अब आते हैं हम अपने सवाल की तरफ कि औरतों का हिस्सा मर्दों से कम क्यों? ऐसी बहुत कम सूरतें हैं जहाँ पर औरतों का हिस्सा मर्दों से कम है और उसकी बुनियादी वजह जिन्स यानी जेंडर नहीं है बल्कि माली जिम्मेदारियाँ हैं। एक मर्द पर अल्लाह ताला ने माली जिम्मेदारी का बोझ डाला है। एक मर्द को अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखना होता है, अपने माँ बाप के खर्च उठाने होते हैं, अपने गैर शादीशुदा और यतीम भाई बहनों के खर्च उठाने होते हैं और बाज़ वक्त अपने बेटों और मुतल्लिका बहनों का भी खर्च उठाना होता है। और आजकल जो हम हालात देख रहे हैं, अगर बेटों का या बेटियों का इंतकाल हो जाए तो उसे नाना और दादा के तौर पर अपने यतीम यसीम नवासे नवासियों का और पोतरे पोतरों का भी ख्याल रखना होता है। जबकि औरत पर तो उसकी अपनी माली जिम्मेदारी भी नहीं होती। अल्लाह ताला ने औरत की माली जिम्मेदारी भी मर्द पर डाली है। उसकी माली जिम्मेदारी उसके शौहर पर होगी, उसके भाई पर होगी, उसके बाप पर होगी या उसके बेटे पर होगी। अगर हम औरत की जिम्मेदारियों को देखते हुए उसका हिस्सा देखते
का दादा दादी चाहें तो अपने यतीम यसीम पोते पोतियों को का ख्याल करते हुए या नवासे नवासियों का ख्याल करते हुए उनको जिंदगी में कुछ तोहफा दे दे। और बाज़ सूरतों में, सिर्फ बाज़ सूरतों में उनके लिए वसीयत भी की जा सकती है, क्योंकि उमूमी तौर पर नवासे नवासियों का और पोते पोतियों का विरासत में हिस्सा नहीं होता, तो उनके लिए वसीयत की जा सकती है बाज़ औक़ात। माशाअल्लाह। मदरसा